Welcome to my channel. In this session, we are going to start with our new chapter. That is chapter number 8, Body Movements. So let's begin with our chapter. So friends, there is a group of organs in our body which work together to perform a specific function. Specific means one function. Okay, and this group of organs is known as organ system. So let's read the definition present in the slide. Is a group of organs which work together to help the body to perform a life function called the organ system. Now friends, let us discuss about some examples of organ system. So first example is muscular system. Second one is nervous system. And the third word is skeleton system. And as we all know that our human skeleton is made up of 206 bones. And a baby has 300 bones. As the baby grows, some bones fuse together or join. And they are left with, yes, and they are left with 206 bones. Now friends, let us discuss about the functions of the bones. So first is that we all know and we have studied in our previous classes that our bones give us framework, it gives us shape to our body. Without bones, our body would be shapeless and it must like a snail. Okay? And the bones also protect our delicate internal organs. Delicate internal organs means वो नाजुक इंटरनल ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है. ओके, जैसे जो हमारा जो ब्रेन का जो स्कल होता है वो किसको प्रोटेक्ट करता है? हमारे ब्रेन को, राइट? एंड ब्रेन जो है वो स्कल के नीचे प्रेजेंट है. तो हम ये कह सकते हैं कि जो बोन्स होती हैं वो हमारे डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है. ओके, एंड द बोन्स आल्सो हेल्प अस टू मूव. ओके, and it is the movement of the bones that helps us bend, run, walk and so on. कि किस किस चीजों में बोन्स हमारी मूवमेंट प्रेजेंट करती है? यस, वो में बेंड होने में मदद करती है, रन करने में हेल्प करती है, वॉक करने में हेल्प करती है और बहुत सारी चीजें, राइट? So I hope you all must have understood the functions of the bones. Now, friends, let us study about our skull. So skull is present here. Okay, here skull is present. The bones of the skull are the hardest of all the bones. कि जितने भी bones हमारी body में present है, उससे सबसे हार्डेस्ट बोन मीन सबसे टाइट बोन कौन सी है? हमारी स्कल की बोन्स. कौन सी बोन्स? हमारी स्कल की बोन्स. क्लियर? सम ऑफ दीज फ्रॉम द cranium or the cover for the brains. The rest are the facial bones which get shape to the face. कि जो हमारा जो ऊपर वाला पार्ट होता है बोन का वो हमारी ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है और जो यहाँ पर जो हमारे स्कल होता है हमारे फेस को जो कवर करता है उसको हम क्या कहते हैं? फेशियल बोन्स. ओके, आई होप यू ऑल मस्ट हैव क्लियर्ड अबाउट द स्कल. सो फ्रेंड्स, लेट अस डिस्कस अबाउट द स्पाइन. The spine is also called the vertebral column or backbone. कि जो हमारा जो spine है उसको हम vertebral column और backbone भी कहते हैं. It is also known as vertebral column or backbone. It consists of
many small bones known as vertebra. और इसके अंदर और भी बहुत छोटी छोटी बोन्स होती है, उनको हम क्या कहते हैं? vertebra. What they are known as? Yes, they are known as vertebra. The vertebra are hollow at the center and are joined together form a tube. कि जो हमारा जो वर्टिब्रा है वो अंदर से खाली होता है, ओके, एट द सेंटर एंड आर जॉइंड टुगेदर फॉर्म अ ट्यूब. और वो सारे सेंटर से क्या है? जुड़े हुए हैं और एक ट्यूब बनाते हैं. जैसे आप ये देख सकते हो पिक्चर में, ये क्या बना रहे हैं? यस, दे आर मेकिंग अ ट्यूब, राइट? इट इज ऑल्सो लाइक सीइंग लाइक अ ट्यूब. Okay friends, so I hope you all must have understood about the spine. So friends, let us discuss about the rib cage. So, rib cage protects our heart. Okay, rib cage protects our heart. And running through the center of the chest is the breastbone. इसको हम breastbone भी कहते हैं. और ये बोन होती है वो हमारे चेस्ट में प्रेजेंट होती है, ओके. जॉइंट टू इट स्ट्रॉन्ग कर्व फ्लेक्सिबल बोन्स आर कॉल्ड रिब्स. ये जो रिब केज होता है ये किससे बनता है? यस, स्ट्रॉन्ग कर्व और फ्लेक्सिबल बोन से, जिनको हम रिब्स कहते हैं. व्हाट दे आर नोन एज? यस, they are known as ribs. So these are the ribs as you can see in this picture. They are ribs, okay. The ribs curve around and join the vertebral column at the back. कि जो ये हमारी ribs है ये curve है, right? और ये जो curve है वो जो यहाँ से हमारी backbone, हमारे spinal cord, ओके, हमारा जो स्पाइनल कोड है वहां से ये जॉइंड है टू फॉर्म प्रोटेक्टिव कवर फॉर द लंग्स एंड द हार्ट. ताकि ये एक प्रोटेक्टिव कवर बना सके, सुरक्षा कवच बना सके. किस किस के लिए? यस, फॉर आवर लंग्स एंड फॉर आवर हार्ट, ओके. द कवर इज कॉल्ड रिब केज. And this whole part is known as rib cage. And the children, this thick bone is known as sternum. What this is known as? Yes, this is sternum. And इसका नाम rib cage क्यों रखा है? Rib तो उस bone का नाम है और cage क्यों रखा गया है? क्योंकि ये cage जैसा है, पिंजरे जैसा है, तो इसलिए इसका नाम द रिब केज रखा गया है. So friends, I hope you all must have understood the rib cage. So let's study about the forearm and collararm. Okay, collarbones on either side of the neck. Collarbone is attached to our shoulder blade and to the breastbone. कि जो हमारी जो कॉलर बोन है वो हमारे शोल्डर ब्लेड से और हमारी ब्रेस्ट बोन से, ये जो कॉलर बोन है वो अटैच्ड रहती है, ओके. द शोल्डर ब्लेड एंड कॉलर बोन नॉट ओनली गिव शेप टू द शोल्डर. कि जो शोल्डर ब्लेड है और जिसको हम कॉलर बोन भी कहते हैं, वो हमारी जो हमारा शोल्डर है उसको शेप ही नहीं देता, बट ऑल्सो हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द आर्म. और वो हमारी आर्म के मूवमेंट में भी हेल्प करता है. कौन हेल्प करता है? कॉलर बोन और वी कैन से द शोल्डर ब्लेड, ओके. The arm has two parts, the upper arm and the forearm, joined at the elbow. कि जो हमारी जो ये आर्म है वो टू पार्ट्स में डिवाइड है.
अपर आर्म में और लोअर आर्म में. ओके, one long bones through the upper arm while two bones give shape to the forearm. And friends, this part is known as the upper arm and this part is known as forearm. This. Okay, below the elbow there is forearm and और elbow के पहले upper arm. ओके, और अपर आर्म जो है वहां पर हमारी एक ही बोन है और यहाँ पर जो हमारा जो लोअर आर्म है यहाँ 2 बोन्स है. ओके, आई होप यू ऑल मस्ट हैव क्लियर दिस. नाउ फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द हिप बोन. सो एज वी ऑल नो, हियर इज द हिप. ओके, ईच हिप बोन formed by 3 bones fused together. The 2 hips are joined to the vertebra. कि जो हमारी जो 2 hips है वो हमारी जो backbone vertebra है उससे attached है. The hip bones and the vertebra they are joined to form the pelvic girdle. कि जो हमारी hip bone है और जो हमारा vertebra है वो किससे ज्वाइंट होता है? यस, दे आर ज्वाइंट टू फॉर्म द पेल्विक गिडल. वो ज्वाइंट होते हैं और वो एक पूरा पेल्विक गिडल बनाते हैं. एंड चिल्ड्रन, द हिप बोन इज प्रेजेंट हियर, राइट? सी हियर. क्लियर टू एवरीवन वेयर आर हिप बोन इज प्रेजेंट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जॉइंट्स. So let us talk about the joints. What are joints? A place where 2 or more bones meet is called a joint. So joint उसको कहते हैं जहां पर 2 और 2 से ज्यादा चीजें मीट करती है उसको हम क्या कहते हैं? joint. What it is known as? Yes, it is known as joint. Bones are joined by tough flexible bands of plastic tissue called ligaments. कि जो ये हमारी जो joint है वो किससे joined हुई है? एक flexible tissue से, एक flexible elastic tissue से जिसको हम ligaments कहते हैं. What they are known as, उसको हम क्या कहते हैं? Yes, हम उसको क्या कहते हैं? Ligaments. A layer of cartilage cover the surface of the bones where it joins another. और जो हमारा जो कार्टिलेज है वो कवर करता है वो सरफेस हमारे बोन का जहां पर क्या हुआ है? यस, जहां पर जॉइंट एक दूसरे से क्या हुई है? यस, मिली हुई है. And you can see in this picture also. Okay, this picture is also here. This bone and this bone are meeting, right? And here this bone and this bone are meeting. Okay, so it is a joint. And in this leg, this bone and this bone are meeting at this place. So they are not only thing; they are the joint. What they are? Yes, they are the joint. और joints, जो हमारी जो joints है वो 2 तरीके की होती है. जो हमारी जो joints है, our joints are of 2 types. Okay, first is movable joints and the other one is fixed joints. पहली कौन सी है? movable joint और दूसरी कौन सी है? fixed joints. Movable joints can further classified into कि movable joints के कुछ examples है जैसे जैसे ball and socket joint, hinge joint and pivot joints. Okay, so let's talk about these type of joints and the fixed joint also. So first let's talk about the fixed joint. Some joints do not allow movement. These are fixed joints. कि कुछ joints ऐसी होती है
जहां पर मूवमेंट नहीं होती, और द जॉइंट्स बिटवीन द टीथ एंड द जॉ बोन्स आर आल्सो फिक्स्ड, कि जो हमारी जो टीथ की जॉ है ये भी फिक्स है, बस हमारा ये नीचे वाला टूथ हिलता है, ऊपर वाला स्टिल है, वो फिक्स्ड है। क्लियर टू एवरीवन? And the joint is present in our skull is also a fixed joint, is also a fixed joint. अगर हम उस जॉइंट को हिलाने की कोशिश करेंगे तो हमारा पूरा ही हेड हिल रहा है, राइट? वो जॉइंट नहीं हिल रही, हमारा पूरा हेड हिल रहा है। क्लियर टू एवरीवन? Now let's talk about the movable joints, and the first type of movable joint is the ball and the socket joint. The joint of the upper arm and the shoulder bone is an example of this type of joint. कि जो joint है यहाँ पर, जो हमारे यहाँ पर present है, वो ball and socket joint है. Example, bowler can swing his arm or a swimmer can rotate his arm freely. कि जो ये हमारी जो ये वाली जो joint है, वो क्या करती है? Yes, ये पूरी रोटेट होती है, पूरी गोल होती है, राइट? ये पूरी मूव करती है, ओके? सी, पूरी मूव कर रही है ना ये बॉल? वेरी गुड। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द हिंज जॉइंट्स। अब हिंज जॉइंट्स क्या होते हैं उसके बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। हिंज जॉइंट्स आर दोज जॉइंट्स दैट अलाउ मूवमेंट इन ओनली वन डायरेक्शन। ओके, अब हिंज जॉइंट ऐसी जॉइंट होती है जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। इट ओनली मूव्स इन द वन डायरेक्शन ओनली। ओके, लाइक आवर एल्बो, इट इज मूविंग इन द वन डायरेक्शन। ये पीछे तो नहीं जाएगा, नो, इट इज मूविंग लाइक दिस ओनली। क्लियर टू एवरीवन? सम एग्जांपल ऑफ हिंज जॉइंट्स आर, यस, द सम एग्जांपल ऑफ हिंज जॉइंट्स आर our knee and our elbow, our knee and our elbow. Now children, let's talk about the pivot joint. So let's talk about the pivot joint. In such joints, a boning ring rotates around a pivot. It allows side to side and upward and downward movements. कि pivot joint एक bony ring है जो रोटेट करती है पीवेट के अराउंड, ओके? और हम इस जॉइंट से अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट, राइट ही मूव हो सकती है ये बोन, ओके? नाउ व्हाट इज द मूवमेंट? मूवमेंट क्या होता है, ये इसके बारे में हम कुछ बात करेंगे। मोस्ट एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते ही रहते हैं। द टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड लोकोमोशन, और द मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज लोकोमोशन। व्हाट इट इज नोन एज? यस, द मूवमेंट इट इज नोन एज द लोकोमोशन। व्हाट इज नोन एज? यस, it is known as locomotion. Clear to everyone? What is the movement? Now let's talk about the how vertebrates move. कि जो हमारा जो वर्टिब्रेट है, वर्टिब्रेट मतलब हम भी वर्टिब्रेट्स हैं, ओके? वर्टिब्रेट्स मतलब the creature that has the backbone, the creature that has the backbone, और उनकी बैकबोन की मदद से ही वो मूव कर पाते हैं। एनिमल्स दैट हैव वर्टिब्रल कॉलम आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। वो एनिमल्स जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम होता है उनको हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिब्रेट्स। ऑल वर्टिब्रेट्स मूव विद द हेल्प ऑफ बोन्स एंड मसल्स। कि जो हमारे जो सारे वर्टिब्रेट्स हैं वो किस किस की मदद से मूव कर पाते हैं? यस, वो किस किस की मदद से मूव कर पाते हैं? बोन्स की मदद से और मसल्स की मदद से। आई होप you all have understood how vertebrates move, but
Let us talk about it in detail now. Okay, so let's move to the next slide. Now children, आपने देखा होगा कि जो स्नेक है वो भी वर्टिब्रेट है, उसके पास एक फ्लेक्सिबल क्या होती है, उसके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसकी बैकबोन जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है. ओके, और स्नेक भी एक वर्टिब्रेट ही है. ओके, a snake vertebral column is made up of 100 to 400 vertebrates that are connected ball and socket joint. Now friends, the snake का जो vertebral column होता है वो 100 to 400 vertebra से बना रहता है. Okay, strong muscles can attach to the rib, vertebra and belly scales are responsible for the flexibility of the snake's body. कि जो snakes की body पे जो ये होते हैं, क्या होते हैं, ये snake की body पर जो ये scales होते हैं वो किस लिए help करते हैं snake को? Yes, वो snake को उसकी body की flexibility की मदद help करते हैं. Flexibility, उसकी body का flexibility जो उसकी बॉडी होती है वो स्केल्स की मदद से ही होती है. A snake moves by throwing its body into loops on alternate sides. स्नेक ऐसे ऐसे चलता है, वो आगे मुड़ेगा तो वो उसकी ऐसे ऐसे क्यों चलता है? वो लूप्स की फॉर्म में चलता है, अल्टरनेट साइड्स, राइट. वो अपनी बॉडी को थ्रो करेगा, इसके बाद वो अपनी बॉडी को थ्रो करके मूव कर पाता है. क्लियर? नाउ फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट हाउ इनवर्टिब्रेट्स. अब जो जिनके बैकबोन नहीं होती जिन एनिमल्स की, वो एनिमल्स कैसे मूव करते हैं उसके बारे में हम कुछ थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं. About 98% of all animals are invertebrates. कि 98% एनिमल्स जो हैं वो इनवर्टिब्रेट्स हैं. इनवर्टिब्रेट्स मतलब द क्रिएचर दैट हैज नो बैकबोन. ओके, दैट इज दे डू नॉट हैव अ वर्टिब्रल कॉलम. उसका मतलब क्या है? यस, इनवर्टिब्रेट्स मतलब कि उनकी जो बैकबोन है वो उनके पास है ही नहीं. क्लियर? Now let's talk about how the invertebrates move. So the example of invertebrates are the snakes. Snakes have a soft body which they can pull back into the shell. कि स्नेल के पास एक सॉफ्ट बॉडी होती है जो वो अपनी बॉडी को जो उसका शेल है उसमें भी खींच पाता है, राइट, ओवर द ग्राउंड ड्रैगिंग. दे हेल्प अ लार्ज फ्लैट फुट. कि उनके पास क्या है? एक लार्ज फ्लैट फुट है. आप इस पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं, ये देखो, ये लार्ज फ्लैट फुट है ना. ओके, विच हेल्प्स देम मूव फॉरवर्ड. ये जो फ्लैट फुट है ये इनको आगे बढ़ने में हेल्प करता है. किस लिए हेल्प करता है? आगे मूव करने में ये क्या करता है? स्नेल्स की हेल्प करता है. और उनमें उनके जो ये ब्लैक फुट है वो एक स्लाइवी सब्सटेंस क्या करता है? यस, प्रोड्यूस करता है, जो उसका फर्श है उसको सॉफ्ट कर देता है और वो आगे 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 धीरे धीरे मूव कर पाता है, राइट. The movement of the foot is controlled by muscles attached to it. कि जो मूवमेंट होती है फुट की वो किसके मदद से कंट्रोल्ड होती है? यस, स्नेल की मसल्स के थ्रू. ओके, नाउ आई होप यू ऑल मस्ट हैव क्लियर्ड today's chapter, that was chapter number 8, body movements. Thank you. Till then, bye bye. Meet you soon.